ਭਾਰਤੀਏ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਚੌਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, कहते नानक शाह जिने वो पूरे हैं आगा गुरु, वो कामल रहबर जग में हैं, हों पूरे जैसे मां गुरु, मकसूद मुराद उम्मीद सभी, बार लाते हैं दिल खा गुरु, नित लुत्फों कर्म से करते हैं हम लोगों का निर्वाह गुरु, इस बख्शिश के इस रहमत के हैं बाबा नानक शाह गुरु। सब शीश का अरदास करो और मुख से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरां दे पावन चरनां च हाजरियां लवा के बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जी दे महावाक अनुसार ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਛੀ ਝੱਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1469 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਜ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ 100 ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਲੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 3-3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 300 ਘੰਟਾ ਇਹ ਵਾਚਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। 60-70 ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਟਰਾਂਟੋ ਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਔਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
मैं अपने अज के इस मजमून नूं प्रारंभ करना चाहता हाँ, क्योंकि अज का दिहाड़ा जिहड़ा है ये सिख इतिहास विच बहुत एक अहम जगह रखता है। वैसे तो रोज ही कोई ना कोई ऐसी घटना होंदी है जिन्हों असी सतगुरां दे पावन चरनां च बैठ के वाचन का यत्न करने हैं। सत्संगी जनों, मैं बिने कर रहा जिहड़ा कल का दिहाड़ा लंघिया 30 अप्रैल, इस 30 अप्रैल शनिचरवार सन 1836 ईस्वी नूं सुरकरम पर्बत के लागे जमराओ के किले की राखी करदियां होयां सिख कौम के चीफ जनरल सरदार हरि सिंह नलवी नूं गोलियां वजियां सन। अज के दिन सिख राज का चीफ जनरल सरदार हरि सिंह नलवा अपने 5 भूतक शरीर का त्याग करके गुरु चरनां च जा बिराजिया सी। अज का दिहाड़ा सरदार दे अकाल चलाने का 30 अप्रैल वाले दिन उसनूं गोलियां वजियां सन। जदों असीं तवरीक पढ़ते हाँ, जदों असीं दलील नाल गल ना करांगे, फड़ लो मार दिओ वढ टुक कर दिओ, युग मीडिया का है, कलम का युग है, तोप नालों ज्यादा पावर कलम रखती है। सत संगत, जिन्ना चिर असीं बादलील गल दुनिया के लोगों के सामने अपनी रख ना सकांगे, असीं दुनिया के सामने सिर उच्चा करके नहीं गल कह सकते कि असीं सर्वोत्तम है, साडे नाल धक्के होए ने, साडे नाल क्यों इंसाफ नहीं कीता गया। मैं योधे का मजमून साझा करन तो पहला एक चैप्टर तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा। पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी वर्ग आ बैठे हो, जर्मन वाले ने अपने मुल्क की हिफाजत करने वास्ते एक दीवार बनाई जिन्होंने जर्मन की दीवार आख्या जाता है। फिर चाइना ने अपने देश की सरहद की राखी करने वास्ते बहुत वड्डी दीवार बनाई जिन्होंने अजूबा आख्या जाता है। जिस रस्ते राही हिंदुस्तान की धरती के उत्ते हमलावर हुंदे सन, उस रस्ते नूं असीं दर्रा खैबर आखदे हां। जिन्होंने इसनूं बरीकी नाल पढ़िया वो जानते हैं। मैं बैठ के सोचन का यत्न किया कि रस्ता बहुत वड्डा होवेगा। जिथों हिंदुस्तान की धरती के उत्ते हमलावर आउंदे सन, पर इंसान की सोच जवाब दे जाती और हैरान हो जाता इतिहास का पाठक। जिस रस्ते हिंदुस्तान की धरती के उत्ते सैकड़े साल हमलावर आउंदे रहे, वो रस्ते की चौड़ाई कितनी है जी? दर्रा खैबर की 12 मीटर। मैं मील नहीं कह रहा, 12 मीटर। 12 मीटर का रस्ता सैकड़े साल भारत वासियों के कोल बंद नहीं होया, जिहड़ा सरदार ने जमराव का किला बना के बंद किया। हिंदुस्तान की धरती के उत्ते कहावत बन गई सन, जिहड़ा बंदा इतिहास के पन्नियां तो कुछ सिखदा नहीं वो गवाच जाएगा। हिंदुस्तान का गवांढी मुल्क है पाकिस्तान, उन्हें कुछ मिसाइल बनाईया। मैं इशारे मात्र सरदार का प्रसंग तुहाडे नाल साझा करन तो पहले मैं लड़ीवार इसनूं प्रारंभ करांगा, जिते छड़ देवांगा भुल जावांगा तुसां याद करा देना। वैसे तो कोशिश करांगा मैं उस जगह के उत्ते इस मजमून नूं फिर फड़न का यत्न करांगा कि कोई पहलू रह ना जावे। पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल बनाईया, उन्होंने नां तुसीं सियाणे बैठे हो, कभी सोचन का यत्न किया होगा उन्होंने की रखे। उन्होंने किसी का नाम रखा गौरी, मोहम्मद गौरी के नाम तो। यह भी हमलावर सी हिंदुस्तान की धरती के उत्ते। गजनवी, महमूद गजनवी के नाम तो यह भी हमलावर सी। अब्दाली जिन्हें हिंदुस्तान को रज के लुटे है। तैमूर ये लंगा जा भी आन के हिंदुस्तान को लुट के लै जाता रहा। सत्संग ऐसे अनेका ना हैं जिहड़े हिंदुस्तान की धरती के उत्ते हमलावर होके आए और हिंदुस्तान को लुट के लै जाते रहे। हिंदुस्तान के गवांढी मुल्क ने इन्हां हमलावरां दे नाम उत्ते मिसाइलां बनाईयां। चाहिदा ते इह सी साडी भारत सरकार अपनियां मिसाइलां दे नाम उन्हां योधियां दे नाम उत्ते रखदी जिन्हां ने हमलावरां दे नक च नकेल पा के दुनिया के लोगों नूं विखाया। भारत वर्ष दीयां मिसाइलां दे नाम चाहिदे सन हरि सिंह नलूआ, बाबा फूला सिंह अकाली, श्याम सिंह अटारी,
देसा सिंह मजीठिया, महाराजा रणजीत सिंह, किहड़े नां है नहीं सन, पर ये भारत दे की लगदे हन जी। साडी भारत सरकार ने अपनियां मिसाइलां दे नां रखे अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, ये आदिक नां रखे गए। दुनिया के लोग उस चीज के कोलों डरते हैं जिहदा डर उन्होंने कदी वेख्या होवे, जिहदा डर ना वेख्या होवे उस चीज के कोलों दुनिया के लोग डरते नहीं। मैं किसी को वड्याउणा जां छटियाउणा नहीं चाहुंदा। जदों आपां इतिहास के पन्ने पढ़ते हैं, साध संगत अवार्ड उन्होंने नाम दे उत्ते जारी किए जाते हैं जिन्हां दे जीवन च कोई खोट ना होवे। हिंदुस्तान की धरती के उत्ते मैं हर पहलू ही तुहाडे नाल साझा करना चाहता हाँ। सिख राज कहने तो पहला इनू असीं बार बार सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? इंसान अपने चंगे दिनों नूं याद करता है, जवानी च बचपन नूं याद करता है, बुढ़ापे च जवानी नूं याद करता है। क्यों असीं बलदी दे बूथे गए? अज भारत च किसी चंगे कोच नूं कोई अवार्ड देना होवे तो उन्हें दिता जाता द्रोणाचार्य अवार्ड। यह द्रोणाचार्य अवार्ड साध संगत यो है, द्रोणाचार्य कौरवां ते पांडवां नूं धनुष विद्या सिखा रहे हैं। गरीब बच्चा आ गया, कहंदा जी मैनू सिखा दिओ। द्रोणाचार्य ने आख्या तेरी जात की आए? कहंदा जी मैं शूद्र हां, दौड़ जा इत्थों, तैनूं नहीं सिखाया जाएगा। वह बेचारा जंगल च जाके मूर्ति बना के द्रोणाचार्य के कोल सिखदा रहे। मैं प्रमाण दे रहा। समा आया, साध संगत होया कि इन्हां दा इम्तिहान होण लगा। कृष्ण ने एक परचा पाया अर्जुन, अर्जुन तीर मारते दरख्त के सारे पत्ते मैनूं विन के विखाल। उन्हें तीर मारिया, दरख्त के सारे पत्ते विन दिते। एक पत्ता कृष्ण ने अपने पैर थले लिया होया सी, वह भी विनिया गया। कहंदा तू पास है। भगवान एडी छेती? कहंदा जे तू आ पत्ता ना विनदा तू फेल हो जाना सी। उन्हें आख्या मैं नहीं जे विनिया। कौन विन गया? वो गरीब बच्चा कोल आया, कहने लगा जी मैं विनिया भगवान। कृष्ण बड़ा खुश होकर कहने लगा तेरा नां की है? कहंदा जी मेरा नां एकलव्य। तेरी जात की है? कहंदा जी मैं शूद्र हां जात। कहंदा धनुष विद्या कित्थों सिखी? द्रोणाचार्य वाल उंगल करके कहंदा इहदे कोलों। कृष्ण ने नारी कढ़ के आख्या, कहंदा शूद्रां नूं विद्या सिखाउंदा रहे? उन्हें सिर फेरिया, भगवान नहीं। कहंदा हुण कर कुछ, जे शूद्र एडे तीरंदाज हो गए तो साडे अर्जुन दा की बनेगा? उन्हें आख्या फिर मैं तेरा गुरु होया ना? कहंदा जी जरूर। कहंदा मेरी गुरु दक्षिणा दे। उन्हें जो दसिया कि मैं मूर्ति बना के सिखदा रहे हैं, कहंदा जी लै लो, की चाहिए? कहंदा कुछ नहीं चाहिए, बस जिस अंगूठे नाल खिंच के तीर चलाउणा है अंगूठा वड्ड के मैनू दे दे, ताकि जिंदगी भर मुड़ के तू तीर चलाउण जोगा ना रह जाए। गरीब बच्चे का अंगूठा वड्ड लिया क्योंकि शूद्र जात है। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अवार्ड जारी किए गए, द्रोणाचार्य अवार्ड। ਜਿਹਦੇ जीवन च खोट ना होए, ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अवार्ड जारी किए जाते हैं। गुरु ने सिखा तेरे को की नहीं सी। हजूर ने सिर मंगे, दो भेंट हो गए, तीसरा उठे ही ना। फिर उठिए ना हिम्मत राय महरिया का बच्चा पातशाह कहते उठता नहीं सी। कहना महाराज डर लगता सी। वो काहदा डर है? महाराज मैं सुनिया साडे वर्गे लखां बंदे रोज जम जान, परमात्मा नूं खुशी कोई नहीं। लखां मर जान, परमात्मा नूं दुख कोई नहीं। पातशाह मैं शूद्र श्रेणी च मैं डरदा नहीं सी उठदा। जे तुसां इनकार कर दिता तू शूद्र जात दा, तेरा सिर प्रवान नहीं। महाराज मैं किसे थां जोगा नहीं सी रहना, मैं तां नहीं सी उठदा। पातशाह ने बाह फड़ के आख्या, कह लगे आफ राजनातन मैं शूद्र रहन देना, ते आज मैं सोढ़ी रहना। मैं कुछ भी नहीं रहन देना, सारा कुछ मिटा के रख देना। सत्संग चाहिए ते सी जिन्हां ने हिंदुस्तान की कायाकल्प की, पूरा हिंदुस्तान उन्होंने गुणगायन गाउंदा है। पर की लगते ने जिहड़ा अर्जुन अपने सामने हिजड़े नूं खिलार के पितामह भीषम ते तीर चलाउंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, अर्जुन अवार्ड।
साडा एक बहुत सूरमा योधा कबड्डी का प्लेयर है बलविंदर फिड्डा। मैनू उहदे घर प्रोग्राम करने का मौका मिले। SSP है इस वेले जलंधर। सैकटरी ने उठ के आख्या जी बलविंदर फिड्डा जी अर्जुन अवार्ड जेतू हैं। मैं बाद च दलील दी। उन्हें आख्या बेशक इंडिया सरकार इस तो बाद अवार्ड जारी ना करे, पर अज तो बाद गुरु नानक दा सिख होने के नाते मैं अपने नां दे नाल अर्जुन अवार्ड जेतू नहीं लावांगा, मैं अपने नां दे नाल लावांगा हरी सिंह नलूआ अवार्ड। वो अज भी अपना नां लिखदा है ते लिखदा हरी सिंह नलूआ अवार्ड। ये बब्बर शेर कश्मीर फतेह करके आया। साध संगत जबार खान दे कोल कश्मीर खोया, खालसा राज का हिस्सा बनाए। मैं दो गल्लां होर साझियां करनियां चाहुंदा हां। यह सरदार का नाम नलूआ क्यों पे? दो बंदे हैं अज तक इतिहास दे विच जिन्हां ने शेर का शिकार बिना शस्त्रां तो कीता है। एक राजा नल बाबा विश्वकर्मा जी का पुत्र जिहदी नाथमल ते अब्दुल खैर ने वार लिखी है। नाल सिपाही नील नल मार दुष्टा करे तगीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। जिन्हें शेर का शिकार बिना शस्त्रों तो किया। शिकार वास्ते जा रहे ने महाराजा रणजीत सिंह। बब्बर शेर ने हमला कर दिता। मर्द ने जबाड़ियां तो फड़ के बब्बर शेर नूं पाड़ के धरती दे उत्ते सुट दिता। महाराजा रणजीत सिंह ने छाती नाल ला के आख्या, कहने लगे तू हरी सिंह काहदा है? तू ते राजा नलवा है, तू ते नलवा भी करके विखाल दिती है। यह नलवा तो ये नां दे नाल शब्द नलवा जुड़ गया, जिहड़ा बाद च इहदे नां दा शिंगार बन गया। साध संगत यह मर्द कश्मीर फतेह करके आया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने लागे बिठाए। बेईमान ध्यान सिंह डोगरे की निगाह दे उत्ते पई। एक गल नोट करियो, जिदन महाराजा रणजीत सिंह की फौज च हरी सिंह नलूआ भर्ती होया सी, उसे दिन ही ध्यान सिंह डोगरा, सुचेत सिंह ते गुलाब सिंह तिन्ने भरा 3-3 रुपये महीने की तनख्वाह तो महाराजा रणजीत सिंह की फौज भर्ती हुई सन। जे कौम ने योधे बड़े पैदा किए ने तो गदार भी बड़े पैदा किए ने। साध संगत ये कोई शक नहीं। उन्हें मन ही मन सोचा, कहता ध्यान सिंह तू कहना तेरा पुत्र हीरा सिंह पंजाब का मालिक बन जावे, नहीं बन सकता। जे चाहना बन जावे ते जिदा तू बाबा फूला सिंह अकाली मरवाया, हरी सिंह नलूआ मरवा, फिर तेरा पुत्र हीरा सिंह पंजाब का मालिक बनेगा। 4 स्तंभ दुनिया के लोगों ने सिख राज दे दसे ने। सिंह साहब बाबा फूला सिंह अकाली, जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, सिख कौम का चीफ जनरल सरदार हरी सिंह नलूआ, महाराजा रणजीत सिंह ते आखिरी स्तंभ जिन्हों सरदार शाम सिंह अटारी वाला आख्या जाता है। उन्हें आख्या मरवा। वो चिट्ठियां कढ़ के लिया जड़ियां दरियाटक के पारले पासे तो आईयां सन। बहुत लंबा मैटर है। साध संगत दे विच बहुत व्याख्यान करने की लोड़ है। फिर मैं मजबून नूं सारे नूं जे तुसां ने कृपा की, गुरदेव पिता सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने कृपा की, यह मजबून मैं विस्तार दे नाल तुहाडे चरनां च रखण दा यतन करांगा। सेवा तुसां ने आप लै लैनी। मैं पहला ही होण वालियां गलतियां जो अनजाने विच हो जाण ਉਹਦੇ ਲਈ मैं तुहाडे को खिमा मंगदा, क्योंकि बहुत ही गुंझलदार इतिहास है, बड़ी बिरती लाउणी पवेगी। मैं मने कर रहा चिट्ठियां विखाइयां, महाराजा रणजीत सिंह ने चिट्ठियां पढ़ियां। कहने लगे ध्यान सिंह जी वो मेरे राज भाग विच इन्ने लोग दुखी, चिट्ठियां तुसीं मैनूं अज दस रहे हो? ये चिट्ठियां हजारे तो आईयां सन। हजारा जिहड़ा है ये दोवां दरियावां दे विचला इलाका, एक पासे दरियाटक दूजे पासे लुंडा। दुनिया का वाहिद एक ऐसा दरिया जिहड़ा लहिंदे तो चढ़दे वाले पासे नूं वगदा है, और दुनिया का कोई दरिया लहिंदे तो चढ़दे वाले पासे नूं नहीं वगदा। साध संगत फिर अटक नाल मिलदा है, अटके नूं वहा के फिर जाके समुद्र च सुट दिंदा। उन्हें आख्या महाराज तुहाडी तबीयत ठीक नहीं सी, अज सेहत कुछ वल वेखी है, इस करके चिट्ठियां लिया के मैं तुहानूं विखा लियां ने। महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या दसो फिर किसनूं भेजीए? ते ध्यान सिंह ने आख्या महाराजा साहब उथों दे पठान बड़े जालम ने ते हरी सिंह तो बगैर ते किसी दे काबू नहीं आने। जिवें कचहरी विच वार्तालाप हो रही है, प्रारंभ विच ढाडी सिंह ढाडियां दा क्लासिकल राग गड्डी दे रूप विच तुहाडे नाल साझा करन दा यतन कर रहे ने। सरवण करिए सिंह साहब
पंथ दी माया नाज और सत्कारयोग हस्ती सिंह साहब बाबा राम सिंह जी मुखी दमदमी टकसाल वो दीवान विच हाजिर हो रहे ने। एक रवायत है जिन्हों संगतां ने मान बख्शिश किया हो, गुरु महाराज ने मान बख्शिश किया हो, ऐसिया हस्तियां जो दीवान हाल विच हाजिर होण सत्कार जो जयकारा चढ़िया जाता उत्तर चढ़ती कला च देण दी आप जी ने खेचल करनी। बोले जो आया सिंह साहब बाबा राम सिंह जी हुणां ने जिन्होंने हुण साडे तो बाद तुहानूं कथा द्वारा निहाल करना। सत्संग पंजाब की धरती दे उत्ते कई बार महापुरुषों के नाल स्टेज उत्ते इकट्ठे होने का मौका मिलता है। तुसीं अनेकां वार इन्हां दे विचार सरवण कर रहे हो और मैं उन्हां जी और आप जी के दरम्यान बहुता समा ना रहा क्योंकि मैं अपने समय की हद च रह के ही यह आ मजमून जिहड़ा है तुहाडे नाल प्रारंभ करना चाहुंदा हां। जो कुछ उस वेले कचहरी च हो रहा सी कवि की कलम ने लिखा ते ढाडी सिंह तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। की कह रहे हैं सरवण करो सत्संग। पार
महाराजा रणजीत सिंह के सामने जो पत्रकावां कीतियां, कहन लगे किनू भेजिए, कहन लगा महाराज पठान बड़े जालम ने, हरि सिंह तो बगैर ते किसी दे काबू नहीं आने। महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या, कहन लगे ध्यान सिंह जी जरा सोचो, ये मेरा बब्बर शेर कल अजे कश्मीर फतेह करके आया, दी फौज थकी हुई है, ये शरीर के जख्म अजे अल्ले हैं, किसी होर नूं भेज देंदे हां। इस तो पहला कि ध्यान सिंह कोई अगों गल करदा है, बब्बर शेर भबक के उठ के हाथ जोड़ के कहन लगा महाराजा साहब नहीं, आराम हराम है इंसान दे वास्ते। पंजाबी का एक विद्वान होया, बड़ा विद्वान दया राम जी, उन्होंने हिंदी विच भी अपनियां बहुत सारियां रचनावां लिखियां और पंजाबी विच भी। वो एक गल लिखते हैं, वो कहते हैं हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांत के, शेर की खाल सो तो शिव मान भाए हैं, चित्रे की खाल को ओढ़ते हैं जोगी जति, गैंटे की खाल राजा राणा को सुहाए हैं, पशुओं की खाल के अधिक सुंदर जोड़े बने, बकरे की खाल साथ पानी भर लाए हैं, कहे कवि दया राम राम के भजन बिन मानस की खाल किसे काम नहीं आए। उन्हें आख्या महाराज ये पांच भूतक शरीर का मगरों की करना है, जो रूप पंखेरू वो पंछी उडारी मार गए, ਇਹਦਾ कोई मुल नहीं पातशाह, मैं जावांगा। पंथ की सरमोर हस्ती बनी है, बैठे हुए ने, मैं चाहता नहीं कि मैं उस गंभीर विषय को तुहाडे नाल साझा करा, क्योंकि इन्हां दे हिस्से विच आया। अज युग है सत संगत, हर तरह के नाल हमला हुंदा, हर तरह के नाल। अपनी तुष बुद्धि अनुसार वो व्याख्यान मैं तुहाडे चरनां च करना चाहुंदा। किसी ने इन्हां पंक्तियों को आधार बना के उन्होंने आख्या सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी वो सिखो जिन्होंने मत्था टेकदे हो गलत है। वलवला खड़ा हो गया, ये आशुतोष राणे ने आख्या सी, साडी मानसिकता की कमजोरी है कि बिहार का भुखा मरदा भैया जो पंजाब आ जाता तो महाराज बन के बैठ जाता। सत्संग पुछना किया, कह लगे किवें, कहंदे जो बाणी लिखी सी उदों साइंस नहीं सी, हुण साइंस है, इस करके बाणी साइंस की कसवट्टी ते खरी नहीं उतरती। पुछण वाले ने सवाल किया किवें नहीं उतरती, उन्हें कहा तुहाडी बाणी दी पंक्ति कहंदी है नरू मरे नर काम ना आवे, पशु मरे दस काज सवारे। तुहाडी बाणी कहंदी है बंदा मर जाए किसी काम का नहीं, पशु मर जाए कई काम सवारदा, अज बंदा मर जाए उहदियां अखां दान हो जांदियां, बंदा मर जाए उहदियां किडनियां दान हो जांदियां ने, चंगी पोजीशन च मरे बंदे दा दिल भी दान हो जाता है। जेड़ा बंदा एक बार मर के अपनी अखां दान दे गया, गुरदे दान दे गया, दिल दान दे गया, भला मर के कम किसी दे किदां ना आया। फिर बाणी साइंस की कसवट्टी ते खरी नहीं ना उतरी। साध संगत ये गलत हो गई ना, एक बंदे ने उठ के इहनूं गलत कर दिता है। बैठे हुए ने महापुरुष जवाब दिता गया, उन्होंने आख्या आशुतोष ये बाणी किसी कवि की लिखी हुई नहीं जिन्होंने तेरे वर्गा उठ के गलत कर दे। ये तुरकी बाणी आई तेन सगली चिंत मटाई, ये अकाल पुरख की दरगाह आई हुई बाणी है। साडी सोच उथों तक नहीं जाती। साध संगत जिस सिखर नूं मद्दे ने रखदे होया ये बाणी उचारण की गई है, लिखी गई। मैं ते तुहाडी हां बहुता ज्ञान नहीं रखदा, पर अपनी तुष बुद्धि अनुसार जो कुछ अजे तक सिखे विद्वानां ने जवाब दिता। कहन लगे पंक्ति ध्यान नाल वाच, पंक्ति है नरू मरे रारे नूं दलौंकड़ा हन, नरू मरे ते नरू दा मतलब है इंसानियत। नर काम ना आवे, नन्ना रारा नर इंसान, इंसान चो इंसानियत मर जावे ते किसे काम दा नहीं रहिंदा। पशु मरे उहदे चो पशु बिरती खत्म हो जावे ते एक की कई काम सवार दिंदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जे सिखर नूं मद्दे ने रखदे होया गुरु साहबान ने कृपा साडे उत्ते कीती है। साध संगत वो तो इहो जिहियां महान हस्तियां ही उस सिखर नूं लभ सकदियां ने ना। जे ते असीं गुरु की संगत कीती होवे, विद्वानां नूं सरवण कीता है, कथा दा लाहा लिया होवे ते फिर ते साडे जीवन का कुछ आधार हो सकदा है। ते जेकर अजकल मन नूं चंचल करन वालियां चीज़ां दी कोई घाट नहीं, जे देश च बैठे इत्थे ते हद मुक्की होई है, पर गुरु दे सिखो सिखी तुसां ही साਂਭ के रखी हुई है। साडे वाल ते अजकल बर्बाद हो चुकी है।
और तुसी जानते हो बर्बाद करने विच किहड़ियां ताकतां हिस्सा पा रही ने। असी भोले लुटे चले जा रहे हाँ। मेरा समा समाप्त है। कल के दीवान च, शाम के दीवान च यह मैं अध्याय प्रारंभ कर चुका हाँ, सिख राज किवें गया। तकरीबन 1.5 महीने का समा मैं तुहाडे चरनां च हाज़री भरनी है। सतगुर ने कृपा की ते इस समय विच मैं ये सारे मजबून नूं तुहाडे चरनां च रखण दा यतन करांगा। दिन दे दीवान च हो सके तो सिख राज किवें आया वो लड़ीवार इतिहास तुहाडे चरनां च, क्योंकि मैनूं हुक्म हो गया सी कि गुर इतिहास तकरीबन सारे ही ढाडी इत्थे बहुत कहिंदे हन। सारे ने आख्या तुसी कोई होर विशा छेड़ो, जे हो सके तो सिख राज का विशा छेड़ो। छेड़न का यतन किया है। अयोग शब्द वास्ते होइयां भुल्लां वास्ते मैं खिमा मंगदा हां। आप संगत बख्शणयोग हो। एक तो एक विद्वान आप जियां विच सुभाएमान है। मैं तो इन्ना विद्वान नहीं, ना मैं विद्वानां दी श्रेणी चाहुंदा हां, एक मामूली जिहा ढाडी हां। इतिहास के टुटे फुटे लवे तुहाडे चरनां च साझा करन वास्ते हाज़र होया है। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। इतिहास नूं मत्था टेकदिआं तुसां सारिआं बेनत मैं अरदास कराई है। सत्कारयोग बाबा जी पंथ की महान शख्सियत मुखी दमदमी टकसाल, जिन्हां ने सचमुच ही कौम नूं चढ़दी कला विच खड़न वास्ते एक बीड़ा उठाया होया है। साडा सारिआं दा फर्ज बनदा है कि असीं वध तों वध सहयोग दईए। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। होइयां भुल्लां दी खिमा देंदे होए सीसां दे उत्ते प्यार सत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।